are going to start the chapter of linear in equations. Now, linear equations हम लोग किए हैं already in class 8, in class 9 in some form. Class 9 में हम लोग उसको simultaneous equations के नाम में जाना था and we did quite a good job. So, any linear equation will have variables with power 1. So for example, you might have an equation like 3x plus y is equal to 7. So y हो जाएगा minus 3x plus 7. This is a linear equation. But if you have an equation like x square is equal to y square plus 8, so this is not a linear equation because square का जो curve होता है, whenever you plot a square, you get a curve like that. ठीक है? You get a parabolic curve. Square आपको हमेशा parabolic curve देता है. ठीक है? So but अगर आपका पावर वैल्यू जो है इक्वेशन का पावर 1 है, then you always get a straight line like that or maybe like that. ठीक है? So we are going to do in equations. ठीक है? In equations आपका linear equation का तरह है, but not the same. It has a difference. So in equation मतलब in equation means the set of values that satisfy a certain condition. तो इन इक्वेशन में आप लोग को एक सेट ऑफ वैल्यूज होगा जो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना. ये कंडीशन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू. ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन आपका हो सकता है. सो इफ यू हैव 3x प्लस वाई इज लेस देन, या हम लोग बोलेंगे 3x इज लेस देन 4 माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आ सकते हैं. ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स is less than 4, 4x is less than 4, dividing both sides by 4, तो क्या हो जाएगा? 4x by 4 is less than 4 by 4, so x is less than 1 आ रहा है. ठीक है? So obviously ये वाला तो आपको पता है क्या होता है, so you can obviously do this also, but आई एम शोइंग दिस टू यू बिकॉज आपको याद रहना चाहिए कि ये इक्वल टू नहीं है. याद रखिए ये इक्वल टू नहीं है. एक जगह माउथ ओपन है, एक जगह आपका माउथ ओपन नहीं है. सो ऑब्वियसली यहाँ आपको समझ में आना चाहिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द अप्रोच टुवर्ड्स सम्स लाइक दीज. So the question is, what are the differences? So before we learn the differences, we need to learn about numbers. And numbers are important in this chapter. ठीक है, so let us have a straight line. ठीक है, जब हम लोग नंबर्स का बात करते हैं, we talk about all possible numbers, all possible numerical values. So it can be 4, it can be -4, it can be 4.8, it can be 5.3, it can be 7.68, it can be 9.0012, it can be 7.3729, it can be 3.5, it can be -6.3, it can be -5, it can be -1, it can be 0, it can be minus 7.8, it can be -4.8, it can be -9.0012, it can be 10.36, it can be 1000.79, it can be 1001. So basically all possible numerical values. ठीक है? In a numerical line, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं. So this is a number line. नंबर लाइन में आपको नंबर्स मिलेगा. In a number line, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So the value at the very middle is 0. इसके राइट में आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं,
इसके लेफ्ट में आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, but does that mean that there are no values between these numbers? No, there are value between these numbers. There are infinite values possible. हम जितना नंबर्स आपको दिया है, there are just a sample of those values. ठीक है, हम जितना नंबर्स आपको दिया है, they are just a sample of those values. So कोई भी वैल्यू यहां पॉसिबल हो सकता है। तो अगर इफ समवन आस्क्स मी कि टेल मी वेयर इज 3.5, यहां है 3.5। कोई बोलता है कि बताइए -4 या 4 -4.8 कहां है, -4.8 कहां है, -4.8 इज हियर, -4.8 इज हियर। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर पॉसिबल्स, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर पॉसिबिलिटीज। सो all possible values are called real numbers. All possible values are called real numbers. ठीक है, now it includes integers and fractions. It includes integers and fractions. So integers में क्या होता है? What do we have in integers? Integers में होता है natural numbers and whole numbers. ठीक है, natural numbers and whole numbers. नेचुरल नंबर आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब all values greater than 0, all values greater than 0 are natural numbers. होल नंबर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। याद रखिएगा, इंटीजर क्या है? वैल्यूज विथ नो फ्रैक्शन, values with no fraction from -infinity to +infinity, values with no fraction from -infinity to +infinity. So ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर होल नंबर्स। सो अगर कोई बोलेगा कि मेरा एक सेट ऑफ वैल्यू होल नंबर है, मतलब उसका वैल्यू 0 से अन अबव पॉसिबल है। फ्रैक्शन मतलब वैल्यूज विथ डेसिमल पॉइंट्स, वैल्यूज विथ डेसिमल पॉइंट्स, वैल्यूज विथ डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो 7.8 जैसे दिया था, 10.76 जैसे दिया था, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर फ्रैक्शंस। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आपको क्वेश्चन आएगा इसका, एंड वी विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन लाइक दैट। सो याद रखिएगा, मेरा क्वेश्चन एक सर्टेन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां हमको दिया 2 into x minus 3 is less than 1। हमको क्या दिया है? 2 into x minus 3 is less than 1। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? यहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2x minus 6 is less than 1, 2x minus 6 is less than 1, 2x is less than 1 plus 6, x is less than 7 by 2, x is less than 3.5। बट यहां हमको बोल रहा है x is an element of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यानी ये हमको बताना है कि x का कौन कौन सा वैल्यू ये कंडीशन सॉल्व कर रहा है। तो सॉल्यूशन है मेरा
x का 1, 2 और 3 ये तीन वैल्यू मेरा सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ, यहां इसका सोल्यूशन क्या होगा, ब्ला 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 वेर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है, तो 30 माइनस 8x प्लस 4 इज लेस देन 30, माइनस 8x प्लस 4 इज लेस देन 30 माइनस 30, माइनस 8x इज लेस देन माइनस 4। सो हम लोग ये काट देते हैं, तो x हो जाएगा लेस देन 4/8, x का वैल्यू आ जाएगा लेस देन 1/2। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये रॉन्ग क्यों है, सवाल उठता है कि ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये आपका इक्वेशन नहीं है, नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन इन इक्वेशन। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है, सो वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अगर -8x इज लेस देन -4, आप इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो आपको मिलेगा 4 इज लेस देन 8x, यानी 8x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4/8, यानी x इज ग्रेटर देन 1/2, x इज ग्रेटर देन 1/2। यानी अगर हमको लिखा है -8x इज लेस देन 4, अगर x में नेगेटिव साइन है और नेगेटिव काटने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे, काटेंगे हटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस देन को ग्रेटर देन कर देना पड़ता। सो whenever sign is changed, whenever sign is changed, direction of in equation also changes, direction of in equation also changes. So when we are changing the sign, यानी यहां -8x है, उसको हमको +8x बनाना है, मेरा पास -8x है, उसको हमको +8x बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां से फिर से देखिए, हम लोग इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये ऐसा है, ऐसे ही रहेगा। तो 4 इधर आया तो ये -4 इधर आया तो +4, और -8x इधर आया तो +8x, ऐसा हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, कि हम लोग जब भी साइन चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इन इक्वेशन। लेस देन जो होता है, देखिए लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन गया, देखिए x यहां पहले लेस देन के साइड में था, अभी x कहां है, ग्रेटर देन के साइड में। सो अगर आप डायरेक्टली ये काटने जा रहे हैं तो आपको इसका साइन, डायरेक्शन का साइन चेंज करना होगा। ठीक है, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? लुक एट क्वेश्चन 6। इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर, सो सॉरी, इसको खत्म करना है पहले। सो हमको क्या मिल रहा है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो हमको बोल रहा है x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन हाफ है, और x का वैल्यू है क्या, x का वो वैल्यूज है नॉन नेगेटिव वैल्यूज है। सो विच वैल्यूज हियर आर ग्रेटर देन हाफ, सो सोल्यूशन इज 1, 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन हाफ एक्सेप्ट फॉर 0। 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू नहीं है जो हाफ से छोटा है या इक्वल है। So all of the values are greater than equal to, greater than 1/2. All of the values that we see here are greater than 1/2. ठीक है, let's move forward. If x is a negative integer, ठीक है, so 2/3 plus 1/3 into x plus 1 is greater than 0. ये हो गया 2/3 प्लस x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 0। अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम सेम है सो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 प्लस x इज ग्रेटर देन,
ये अगर यहाँ क्रॉस होगा तो हमको 0 मिलेगा. सो x इज ग्रेटर देन -3. सो सिंस x इज अ नेगेटिव इंटीजर, सो x का वैल्यूज कहां से होगा? माइनस इंफिनिटी से आएगा. -5, -4, -3, -2, -1. ठीक है. सो हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन -3? सोल्यूशन हो जाएगा -2 एंड -1. नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ ये दो वैल्यूज है जो इससे बड़ा है. सिर्फ ये दो वैल्यूज है जो इससे बड़ा है. ठीक है. ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का. चलिए लेट्स सॉल्व दिस. आई नो यू वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड दैट इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज इसमें आप देखेंगे -3 इंटू 2 -6 होगा, -3 इंटू एक्स -3x होगा, ग्रेटर देन 6x -2. ठीक है. -2x -6x इज ग्रेटर देन 6 -2. -8x इज ग्रेटर देन 4. ठीक है ना. अगर हम लोग साइन यहां से यहां चेंज कर, या क्या बोला था हम, अगर x का साइन चेंज कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन? x इज ग्रेटर देन -4/8. ऐसा हो जाएगा? नहीं. क्या करेंगे? इसको लेस देन कर देंगे, क्योंकि x से साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस से प्लस कर रहे हैं, तो मेरा ये साइन चेंज हो जाएगा. So x is less than -1/2 आएगा. So which values are less than -1/2? Solution हो जाएगा -3, -2, -1. बोल रहा है इसको नंबर लाइन में भी डालिए. तो नंबर लाइन में डालने का मतलब क्या है? याद रखिए, नंबर लाइन में हम लोग हर एक पॉसिबल नंबर को लिख सकते हैं. नंबर लाइन में हम लोग हर एक पॉसिबल नंबर को लिख सकते हैं. ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. ठीक है. सो वी डू नॉट नीड सो मेनी. नाउ नंबर लाइन में जब प्लॉट करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एग्जैक्टली हमको बोला है कि ये तीनों हमको डालना है, तो हम लोग एग्जैक्टली जहां जहां हमको ये नंबर्स मिल रहा है वहां वहां हम लोग डालेंगे. एंड दैट इज योर आंसर. दैट इज हाउ यू ड्रॉ द नंबर लाइन. क्या करते हैं? सिंस हम लोग का इंटीजर वैल्यूज एंड इंटीजर वैल्यूज आर एग्जैक्ट वैल्यूज, हम लोग उसको वहीं डाल देंगे एंड वहीं हम लोग का काम हो जाएगा. ठीक है. आर वी क्लियर? नाउ ये आपको सेट फॉर्म में दिया है, तो ये होगा x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स. यानी x जो है वो इंटीजर्स है, एंड इंटीजर्स का वो वैल्यू जो है -4 से +4 के बीच में है. सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x ऑफ a? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a? दीज आर द वैल्यूज ऑफ a. बोला है 2x -3 इज लेस देन 3. 2x -3 इज लेस देन 3, तो 2x क्या हो जाएगा? लेस देन 6 हो जाएगा. x इज लेस देन 3 हो जाएगा. x इज लेस देन 3 हो जाएगा. where x has the domain a, where x has the domain a, मतलब x का जो वैल्यू है यहां से निकालना है. सो हाउ मेनी वैल्यूज आर लेस देन 3 हियर? x का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा? -4 is less than 3, -3 is less than 3, -2 is less than 3, -1 is less than 3, 0 is less than 3, 1 is less than 3, 2 is less than 3, but 3 is not less than 3, 4 is not less than 3. So this is my solution. So अगर हम नंबर लाइन में डालेंगे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, obviously. So which values do we have to put in? -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2. That is your answer. That is your answer. ठीक है. Let's look at this. List the solution set. और यहां देखिए क्या बोला है? X is an element of natural numbers. यानी x का वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4 इनमें से निकालना होगा. So 11 minus 2x by 5 is greater than equal to 9 minus 3x by 8 plus 3 by 4. 11 minus 2x by 5 is greater than equal to 9 minus 3x by 8. अगर हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ 8, तो ये वही आएगा और ये आ जाएगा +6. 11 minus 2x into 8 is greater than equal to 15 minus 3x into 5. ठीक है. ये आ जाएगा 88 minus 16x is greater than equal to 75 minus 15x. ठीक है. इसको इधर ले जाते हैं, +16 हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं.
ये हो जाएगा 88 माइनस 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 माइनस 15x, 16x माइनस 15x यानी 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 13, यानी सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and that should be your answer. Any doubt? Let us just recap the important part. अगर माइनस एक्स लिखा है इज ग्रेटर देन माइनस 8, और अगर आप साइन हटाना चाहते हैं तो आप इसको चेंज करके लेस देन कर दीजिए. अगर आपका लिखा है माइनस एक्स इज लेस देन 2, तो अगर आप x से पॉजिटिव कर देंगे तो ये x ग्रेटर देन हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ले जाने पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है. सो वी गेट x इज ग्रेटर देन -2. ठीक है, ये साइन दोनों जगह चेंज होगा. ठीक है, सो जब साइन चेंज होता है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन आल्सो चेंजेस. सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और यू कैन डू इट दिस वे. दिस इज द सेफर वे, जहां आप x को एक्चुअली मूव करते हैं, कीपिंग दिस वन द सेम. तो इसमें क्या होता है कि आपको गलती होने का चांसेस कम होता है. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन सेट. होल नंबर मतलब 0 से लेना है. इंटीजर्स आप लोगों को पता है, तो 16 तक हम आपको होमवर्क में देंगे. काफी इजी है, इसको खत्म करेंगे मंडे में, ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा. अगर आपको डाउट है तो प्लीज हमको आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे. ठीक है, आई एम कंक्लूडिंग फॉर टुडे. अगर आपको डाउट है तो प्लीज हमको कांटेक्ट कीजिए, अगर आपको कहीं भी डाउट है. ठीक है, चलिए.